A very good evening, namaste, and a warm welcome to all of you. You all know in the midst of COVID era, we are passing through unprecedented and turbulent times. And our healthcare COVID warriors, our healthcare workers, doctors are on their toes and are working tirelessly to take care of their patients. A big salute to our medical fraternity who are selflessly working for humanity. We all know that our medical infrastructure is on jolt because of the rising number of patients. And there is a lot of medical information which is floating in the market, which is confusing the people. Safetree and Bhatia Global Hospital has taken an initiative to launch a series of medical webinars to reach out to the masses to help them on medical issues with their medical experts. I'm Dr. Supriya Anand, and we have with us a very eminent speaker this evening, Dr. Parveen Bhatia, who is a mentor and guide to me. Before I start, I would like to quote Sir's one of his favorite tagline that it is better to light like a candle than to curse the darkness. This was one of the lines Sir said in one of his medical conferences. Dr. Bhatia is a very renowned laparoscopic surgeon who is working in the field of minimal access surgery, bariatric surgery, and robotic surgery. He's a medical director of Bhatia Global Hospital, and he's a founding chairman and senior consultant at the Institute of Minimal Access Surgery, Sir Gangaram Hospital. He has a vast experience of more than 3 decades, and he has been instrumental in the advancement of the field of minimal access surgery in the Indian subcontinent. To add to his accolades, he is the author of 3 books, and he's an eminent speaker who has presided over more than 500 national and international conferences all over India and world. To add to his versatility, I would say Dr. Bhatia is a very, very motivational speaker who has been inspiring people's life to the fullest. And his morning quotes, I would say, are like mental boosters we get every morning, and he boosts us with his motivational quotes. Over to you, sir. The forum is yours. Thank you very much, Supriya. And thank you, Vikas. Honestly, I thought that Vikas and you had requested me that I should speak in Hindi as well as English. Yes, so what sir. do you want? That should I continue with English or should I give a English? Sir, English would do. Yeah, good. Yes, sir. तो मुझे thank you very much, Safetree. मुझे लगता है कि आज की इस समय में हम सबको यह बहुत ही जरूरी है think positive but stay negative. What I mean to say, RT-PCR should be negative but we should stay positive. इस पूरे इसका जो हमने आज टॉपिक रखा है उसका नाम रखा है कोविड सुनामी. पिछले कुछ महीनों सालों में, पिछले 1.25 साल से हम सब देखते आ रहे हैं कि कितना ज्यादा इन्फेक्शन फैला और अब जो वेव आई है वो बहुत ही जानलेवा वेव है. तो इसके लिए मैं अपने सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं पिछली बार और उससे पिछली बार जब सेफ्ट्री के लिए हमने वेबिनार किया था तो उसमें हमने SMS का विश्लेषण किया था. S is for social distance, M is for mask and S is for sanitization. So अभी भी जो बचा सकता है हमें कोविड इन्फेक्शन से वो बेसिक वही है SMS, दैट इज सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, मास्क, 2 मास्क. पहले हम सब पिछले साल जब ये वेव आई थी तो हम सब एक ही बात कहते थे कि मास्क लगाना जरूरी है और अगर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो N95 मास्क लगाना है और बाकी दूसरे वर्कर्स हैं तो मास्क लगाना जरूरी है. मगर अब मैं हमेशा अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को भी, भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में भी, गंगाराम हॉस्पिटल में भी
दोनों हॉस्पिटल्स में इस समय हम जिसको कहते हैं कि इतने सारे पेशेंट्स, कोविड के पेशेंट्स मैनेज कर रहे हैं, तो उनको सबको, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बाय फोर्स वो बोलता हूं कि 2 मास्क लगाना जरूरी है। मींस जब एक मास्क लगाएंगे, उसके ऊपर अगर दूसरा मास्क भी लगा होगा, तो उससे क्या होगा, जो थोड़ी बहुत क्रिवाइसेस रह जाएंगी हमारी फेस की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो वो भी कवर हो जाएंगी। उसकी वजह से वायरस अंदर नहीं जा पाएगा, या अगर आपके अंदर वायरस है तो वो दूसरों पे नहीं जा पाएगा। तो इसलिए 2 गज दूरी, 2 मास्क जरूरी। तीसरा जो मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार कि सैनिटेशन का ध्यान रखें, और उसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारी दादी नानी सब ने सिखाया कि हाथ बार बार वॉश करते रहें। वो आज भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद कुछ समय मैं दूंगा वैक्सीनेशन के बारे में, और मगर ये भी जरूरी है कि 2 गज दूरी, 2 मास्क, बार बार हाथ, और 2 शॉट्स ऑफ वैक्सीनेशन। अगर हमने इन पिछले महीनों में हेल्थ केयर वर्कर्स ने, या मोर देन 65 इयर्स एज, 45 इयर्स एज, अब 18 से आगे एज के भी लोगों को मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपनी वैक्सीनेशन कराएं, और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं। क्योंकि अगर हमें इस समय कोई रामबाण है, तो वो पहला मास्क है, एसएमएस है, और वैक्सीनेशन है। अगर हमने वैक्सीनेशन से डर के रहना है, अगर हमें लगता है कि एलर्जी हम इस समय नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा धोखा दे रहे हैं अपने आप को। जो चीज, अगर मान लो एक किसी इंसान को बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोमॉर्बिडिटीज का मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब बीमारियां हैं, और अगर इसके ऊपर हमारा कोरोना वायरस हमारे फैट सेल्स में आके बैठ गया, जबकि वायरल लोड बहुत ज्यादा है, तो उसमें चांसेस हैं कि हमारे लंग्स, हमारे हार्ट खूब सारा इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उसकी वजह से काफी तकलीफ हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है यंग लोगों को, स्पेशली यंग लोगों को, कि इस समय डरे नहीं और आगे चलें, वैक्सीनेशन लगवाएं। प्लीज एनालिसिस पैरालिसिस में मत जाएं कि कोवैक्सीन अच्छी है या कोविशील्ड अच्छी है। दोनों वैक्सीन अच्छी हैं, सभी वैक्सीन अच्छी है, इसलिए वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाएं। कोवैक्सीन 28 दिन के बाद और कोविशील्ड 42 दिन के बाद लगाना लाजमी है। कुछ लोग, अभी मैं कुछ समय के बाद क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली एनकरेज करूंगा और लूंगा, उसमें कुछ लोग मेरे से इन वेबिनार्स में हमेशा पूछते हैं कि अब तो हमें वैक्सीन हो गई, अब हमें मास्क की क्या जरूरत है, या अब सोशल डिस्टेंस की क्या जरूरत है, अब तो हम पार्टी जा सकते हैं। नहीं, इस मामले में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो बेसिक्स हैं, नर्सरी जो एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद जो हमने नींव है घर की वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डेफिनेटली वैक्सीन होने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, मगर उसकी जो मॉर्बिडिटी होगी वो डेफिनेटली सीवियर फॉर्म में हो सकता है, ना हो सकता है मॉडरेट फॉर्म में भी ना हो, और वो माइल्ड फॉर्म में निकल जाए। हमारे कई सारे सर्जन्स, कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे हॉस्पिटल स्टाफ्स जिन्होंने वैक्सीन लगवाई भी थी, उसके बाद भी कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है, और उसके लिए मैं जिम्मेवार यही कहता हूं कि हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। उसके लिए हमें खुद अपने आप को बचाना है, और इस दौरान सारे सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेने का समय है। तो बार बार एक ही चीज कहूंगा, घर में रहें, सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटेशन एंड वैक्सीनेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए सुप्रिया, मैं, आप जानते ही हो कि मैं मोटिवेशनल थॉट्स में बिलीव करता हूं कि इस समय पॉजिटिव रहना भी बहुत जरूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी ऐड करता हूं। उसमें क्या था कि एक समुद्र के किनारे पे एक पक्षी पानी पीता था अपने चोंच से और बाहर फेंक देता था। तो दूसरा पक्षी आया, वो कहते क्या कर रहे हो?
वो कहता है कि ये समुंदर जो है ना ये बहुत गंदा है, इसने मेरे जो बच्चे थे, पक्षी बोलता है कि जो मेरे बच्चे थे उसको समा लिया है, उसको बहा गए हैं साथ इसी समुद्र के अंदर। तो उसने कहा तू कर क्या रहा है? कह रहा है कि मैं इस समुद्र को अब खाली करके दिखा दूंगा। उसने कहा कि अकेला तू समुद्र को खाली कैसे करके दिखाएगा? कहता है मुझे इस समय सलाह मत दो, साथ दो। इस समय मुझे सलाह मत दो, साथ दो मेरा, अगर दे सकते हो तो। उस पक्षी, दूसरे पक्षी ने भी चोंच से पानी को निकालना शुरू कर दिया। एक पक्षी से दूसरे से तीसरे से चौथे से आठवें, और इतने सारे जब पक्षी आ गए और समुद्र के किनारे वो चोंच से पानी को बाहर निकालते चले गए, तो इतनी देर में विष्णु जी का गरुड़ जो था उन्होंने देखा, और गरुड़ ने कहा कि ये कर क्या रहे ये पक्षी? तो उन्होंने, गरुड़ ने जाके पक्षियों से पूछा क्या कर रहे हो? कह रहे कि ये समुद्र खाली कर रहे हैं। उसने कहा समुद्र खाली कर रहे? कैसे समुद्र खाली कर सकते हैं? इतना बड़ा समुद्र और इतने छोटे छोटे तुम पक्षी और इतनी छोटी छोटी तुम्हारी चोंच, उसको खाली कैसे कर सकते हो और क्यों करना चाहते हो? तो उसने कहा कि हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को समुद्र ने खींच लिया है, अपनी तरफ समा लिया है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। उसने कहा मुझे, हमें सलाह मत दो, साथ दो। सलाह मत दो, साथ दो। तो गरुड़ ने भी सलाह ना दी और साथ देना शुरू किया, और इतनी देर में भगवान विष्णु को भी लगा कि मेरा गरुड़ तो वहां पहुंच गया है और सभी लोगों के साथ पानी खाली कर रहा है। जब भगवान विष्णु नीचे समुद्र में आए तो समुद्र ने भी सोचा कि अब तो भगवान ही नीचे आ गए, अब तो मुझे अपने आप अपने बच्चों को, पक्षी के बच्चों को वापस कर देना चाहिए और हमेशा के लिए डिजीज फ्री कर देना चाहिए। कहने का मतलब, इन छोटी सी स्टोरी में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय, एज यू हैव मेंशन्ड राइटली सुप्रिया, कि इस समय हेल्थ केयर वर्कर्स, हम डॉक्टर्स या पूरा स्टाफ इस समय जुट है कि इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। इस समय जुट है अपनी फैमिलीज के लिए, अपनी सेहत को दांव पे लगा के इतनी मेहनत कर रहे हैं। हर पेशेंट से इतने वीडियो कंसल्टेशन करते हैं कि आप इमेजिन कर सकती हैं सुप्रिया, दिन में मैं 200 वीडियो कंसल्टेशन कर रहा हूं, सिर्फ इसीलिए कि हर पेशेंट को मैं सुकून दे सकूं, हर पेशेंट को ये लगे कि नहीं, सारी दुनिया में इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। और अगर हम उनको हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन में है, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जरूरी है, या उनको आईसीयू ऑक्सीजन बेड चाहिए या वेंटिलेटर बेड चाहिए, अगर हम एज डॉक्टर्स, अगर हम इतनी ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए तैयार हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के आप सब लोगों से प्रार्थना है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई भी किसी भी जगह में है, सलाह मत दो, साथ दो। हमारा साथ इस समय दोगे तो उसमें सबका भला है, सभी लोग इसी दौर से निकल जाएंगे, और हमारा जो पक्षी, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, जो समुद्र समा रहा है, जो कोरोना ले रहा है, उसको भी बाहर निकाल के बाहर करेगा। तो कहने का सिर्फ मतलब है, अपनी अपनी पोजीशन पे, अगर जैसे सिंपल भाषा में, जब ये सेकेंड वेव आई, जब ये सुनामी की वेव आई, तो हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज हुई। मैं सेंटर या स्टेट का उसको नहीं मैं ब्लेम करना चाहता। मैं, एज यू सेड, दैट आई बिलीव इन रिमेनिंग पॉजिटिव, डोंट कर्स द डार्कनेस, लाइट ए कैंडल। तो हमें तो ये लगा कि हम क्या कर सकते हैं, बाकी सेंटर या स्टेट करती है या नहीं करती, उसके लिए हमने गुहार लगाई, और हमने अल्टीमेटली, चाहे वो आज तक था या इंडिया टुडे था या व्हाट्सएवर टीवी चैनल्स पे भी जाके बोला कि इस समय हमें ऑक्सीजन दो, जिससे हम अपने मरीजों को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। और आज भी, कैन यू इमेजिन, आज 10-12 दिन हो चुके हैं इस स्ट्रगल को, सुनामी की स्ट्रगल को करते हुए, मगर ऑक्सीजन, यस, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, मगर उतना फर्क नहीं पड़ा जितना होना चाहिए। मगर कोई बात नहीं, मगर ये गुहार सुन के हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे वो यूएस में मेरे बच्चे, तुम्हें मालूम है, शुभम, संचेत और आयुषी, ये वहां, और मिशन ऑक्सीजन, उन्होंने हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेज दिए। सिमिलरली वेंटिलेटर्स, बाईपैप्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमें मिलने। कहने का मतलब है, सलाह मत दो, साथ दो। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस समय नेगेटिविटी का कोई रोल नहीं।
इस समय सिर्फ पॉजिटिविटी का रोल है, इस समय सब्र का रोल है। अगर हम आर्मी की लड़ाई कर रहे हैं और अगर हम फ्रंट पे हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें पेशेंट्स को बचाने के लिए मेडिसिन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो हम किसी तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सके। मेरे इतने पुराने मित्रों ने मेरा साथ दिया कि सर चिंता मत करो, डॉक्टर भाटिया चिंता मत करो, हम आपके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहे हैं। और दूर दूर से उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और व्हाट्सएवर हेल्प करने की कोशिश की। और आज हम भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में फख्र के साथ अपनी पूरी टीम के साथ जुटे हुए हैं कि हम एक एक मरीज को अपनी जान दे देंगे पूरा बचाने के लिए, सो दैट अल्टीमेटली हमारी ये यंग डेथ्स ना हो। इस समय इस वेव में, सुनामी वेव में, हम सब देख रहे हैं कि जो पहले हमें डर था 65 to 70 to 80 इयर्स का इन्वॉल्वमेंट का, वो अब एज डेफिनेटली कम हो गई। 43, 44, 45 साल के लोगों को भी ये इन्फेक्शन हो रहा है। और अभी वेबिनार करने से पहले मुझे कितने सारे यंग पेशेंट, 16 साल 17 साल के पेशेंट्स के फोन आ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम सब एक दूसरे का साथ दें। प्लीज लॉकडाउन में अपने आप को अंदर से झांकें कि मैंने क्या किया बीमारी को टैकल करने के लिए। मैंने दूसरों को ब्लेम करने से बीमारी नहीं दूर होने वाली। हम अपने आप के अंदर झांक के कहें कि मुझे तो एक फिश जो मैं समुद्र के अंदर फेंक रहा हूं, उसको आई विल मेक ए डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ दैट फिश विच आई एम थ्रोइंग इट बैक। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि घर में रहें, एसएमएस करें, ना कि एसएमएस व्हाट्सएप पे विश्वास करें, नेगेटिव न्यूज पे मत विश्वास करें। पॉजिटिव तरीके से जो भी जहां भी है वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करे। और हम हेल्थ केयर वर्कर्स को पूरी तरीके से जिसको कहते हैं प्रोत्साहन दें कि आप हमारे लिए लड़ें और हम सब आपके साथ हैं, तो हम इस दुश्मन को डेफिनेटली भगा देंगे। मुझे याद है नेपोलियन बोनापार्ट, ही वाज सराउंडेड बाय एनिमीज ऑल ओवर, and one of his soldiers said, "Sir, we are surrounded by enemies all over." And he was so positive. He said, "Now we can shoot in any direction." तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि इस समय प्लीज जो जो अपनी तरफ से इस हर्ड इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए कर सकता है करे। वैक्सीनेशन से बिल्कुल नहीं डरें। वैक्सीन में आप ये सोच सकते हो कि कम 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन इंडिया में लग चुकी है। अगर 12 करोड़ में किसी को भी कोई चैलेंज नहीं आया, तो आप क्यों सोचते हो कि मैं करोड़ों में एक हूं, कि अब मुझे चैलेंज आएगा या मुझे रिएक्शन होगा। अगर थोड़ा सा फीवर आता भी है, कोई ऐसी बात नहीं, क्रोसिन लें, पैरासीटामोल लें और उससे फीवर सेटल हो जाएगा। और वैक्सीनेशन से मत डरें। और कुछ लोग इस बहाने में, एक्सक्यूसाइटिस में बिलीव करते हैं कि पता नहीं मेरे को तो कोविड हो चुका है, अब मुझे वैक्सीन क्या जरूरत है, अब तो मेरे एंटीबॉडीज बन चुके हैं। नहीं, अगर वो कोविड हो भी चुका है, कुछ एंटीबॉडीज बने हैं, मगर अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 हफ्ते के बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो वैक्सीन 1 डोज और 2nd डोज कराएं, सो दैट अल्टीमेटली हर्ड इम्यूनिटी जल्दी से जल्दी डेवलप हो। और जल्दी डेवलप होगी उसमें सबका फायदा होगा, हमारे पेरेंट्स का भी, हमारे बच्चों का भी और हमारी जनरेशन के लोगों का भी, सो दैट अल्टीमेटली ये दुश्मन हमारा वापस चला जाएगा। प्लीज डू नॉट कर्स द डार्कनेस, लाइट ए कैंडल। नाउ सुप्रिया, आई थिंक बेटर आंसर ये रहेगा, लोग आप के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन पूछें। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं साफ कहता हूं, मगर इस समय एक सोल्जर की तरह लड़ाई के मैदान में सबसे आगे खड़े होकर लड़ रहे हैं, सो दैट हम इंसानियत को मरने नहीं देंगे। हर इंसान के लिए अपनी जान लगाई हुई है कि कहीं पे भी किसी को भी किसी वजह से भी फायदा हो सकता है तो करेंगे। तो लेट अस हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन। डॉक्टर सुप्रिया प्लीज। सर, यू डिड टेल अस अबाउट, आपने बताया कि 3 जो हमारा एसएमएस हम जो फॉलो कर रहे हैं प्लस वैक्सीनेशन फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं स्टेटिंग के ये अब एयरबॉर्न वायरस हो गया है, तो हमें कुछ और भी प्रिकॉशंस इसके अलावा लेने चाहिए? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच हैज कम। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी इस समय यह है कि
पहले तो घर में रहो, स्टे एट होम, वन। सेकेंड थिंग इज, अगर इवन इफ ये आप हम सबको ये मन में घुस जाना चाहिए कि ये मत सोचो कि स्ट्रेंजर से ये वायरस आएगा, ये हमारे घर वालों से ही वायरस आएगा। जितने हम सब मिलके अगर हम इनमें से एक भी पर्सन बाहर जाएगा, कहीं से वायरस लाएगा, और उसके बाद घर में आके अगर हम इकट्ठा खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से जो वायरल लोड शेडिंग होगी वो दूसरों को इन्फेक्ट करेगी। तो इसलिए प्लीज ट्रीट दिस एज अदर पर्सन एज पॉजिटिव अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। कहने का मतलब पूरी तरीके से प्रिकॉशन लें कि डबल मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, घर में रहें और बार बार हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर्स यूज करें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इस डर को मन से निकाल दें कि वैक्सीनेशन से कोई चैलेंज आता है। वैक्सीनेशन हमने अपने हॉस्पिटल में, भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में 98 इयर्स लोगों को भी दी, 95, 85। मेरे पेरेंट फादर मेरे 89 इयर्स ओल्ड एंड मदर इज 85 इयर्स ओल्ड। उनके लिए अगर हमने सोचा ना कि अगर वैक्सीन सेफ है तभी लगवाई ना, और अगर वैक्सीन सेफ होने के बाद अगर वो सेफ है तो उससे और बड़ी क्या बात हो सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ो। अमेरिका के अंदर इस समय 46% लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं और हमारे यहाँ अभी भी बहुत ही मिनिस्क्यूल नंबर हुआ है। क्यों 13%? क्योंकि उत्साह नहीं है। वैक्सीन, ये बहाना देना कि हाँ अभी वैक्सीन की प्रोडक्शन कम है, रिसोर्सेज क्रंच है, मिलेगी नहीं लोगों को। नो, लेट अस डू आवर ड्यूटी। Do not curse the governments. Do not curse anything. Please go in for vaccination so that आप अपना तो बचाव कर ही रहे हो, दूसरों का भी बचाव करो by building a good herd immunity. या सुप्रिया, म्यूट हो गए आप। हाँ जी सर। सर आई वांटेड टू आस्क, ये क्वेश्चन आया है कि हमारे हॉस्पिटल्स इतने ओवरबर्डन्ड हो रहे हैं और लोग घर में सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहे हैं और होम केयर कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द रेड फ्लैग इंडिकेटर्स फॉर देम कि वो सोचें कि अब इट्स हाई टाइम दे शुड गो टू द हॉस्पिटल एंड गेट देम सेल्फ एड्रेस, ताकि सर से पानी ना निकल जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुप्रिया। इसके लिए मैं डिवाइड करूंगा माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिजीज में। पहले तो सिम्टम्स, हम सब जानते हैं कि इस समय जो सिम्टम है वो गला खराब होना, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, फीवर। ये अगर जब सिम्टम शुरू हुए हैं, प्लीज फॉर गॉड सेक जल्दी से टेस्ट कराएं। आरटीपीसीआर कहीं पे भी हैं तो आप आरटीपीसीआर कराएं और उसमें हिचके नहीं, उसमें डिले नहीं करें। और अगर आपके आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो होम आइसोलेशन में चले जाएं। अब जब होम आइसोलेशन में गए तो उसमें आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है पीपी। कहने का मतलब प्रोन पोजीशन में लेटे। प्रोन पोजीशन का मतलब पेट के नीचे कोई तकिया ना हो, छाती के नीचे तकिया हो, पेल्विस के नीचे तकिया हो, और जितना पेट के बल लेटेंगे, जितना लंबा सांस लेंगे, जितना सांस को रोकेंगे, ब्रेथ होल्डिंग टाइम कैलकुलेट करें। बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी है कि जितना हमारे लंग्स एक्सपैंड करेंगे उतना हम अपने लंग्स के अंदर वायरल लोड को शेड करने से बचा लेंगे। तो लंबा सांस लिया, किस 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, उसके हमें सांस रोका। अगर वो सांस वहां पे रुकता है और बढ़ता चला जाता है, दैट मीन्स वी आर ऑन ए विनिंग पाथ। वी डू नॉट नीड टू गो इन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। वन, अगर मान लो फीवर अगर 100 से ऊपर आता है तो डेफिनेटली पैरासिटामोल, पीपी, प्रोन एंड पैरासिटामोल। पैरासिटामोल इन द फॉर्म ऑफ क्रोसिन या डोलो 650 ये ले सकते हैं। अनदर पी इज प्रोटीन्स। इस समय सबसे ज्यादा रोल है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो अपनी इम्यूनिटी, पर्सनल एक्सरसाइज, प्रोनिंग एंड प्रोटीन डाइट, दूध और चिकन, फिश, एग और ये ज्यादा लें, दही ज्यादा लें, सो दैट अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहे। और प्लस एक
मैं राइडर देता हूं इसमें कि फ्लूइड इनटेक 5 से 6 लीटर रखें। अगर आप हमने सबने फ्लूइड इनटेक अच्छा रखा तो डेफिनेटली हाइड्रेशन अच्छी रहेगी, ब्लड क्लॉटिंग का इंसिडेंस कम हो जाएगा, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो नहीं होंगी। इसको ना सुप्रिया मैं मोटे तौर पे प्रेजेंट करता हूं कि जो पहला हफ्ता है वो Thank you, sir. कोविड डिजीज को ट्रीट करने का है, जो दूसरा हफ्ता है वो कोविड डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने का है। तो इसलिए कोशिश यही की जाए कि जिस समय ये शुरुआत ही हुई है इन्फेक्शन की, उसको उसी में अगर कंटेन कर दिया जाए, उसी समय ये सब कुछ एक्सरसाइजेस करनी शुरू हो जाए, तो उसको हम कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसके लिए डेफिनेटली अपने सारे स्टेप्स ले लें। तो ये तो हो गए सारे स्टेप्स होम आइसोलेशन के। अगर मान लो रेड फ्लैग्स आप पूछ रही थी, अगर मान लो आपको लगता है कि आपने प्रोनिंग कर ली, एक्सरसाइज कर रहे थे, पहले पिछली बार तो 35 सेकंड तक मैं ब्रेथ होल्डिंग कर लेती थी या कर लेता था, अब मेरा सांस उखड़ना शुरू हो गया है और 30 पे आ गया है, 25 पे आ गया, दैट इज ए रेड फ्लैग साइन, दैट इज ए रेड फ्लैग साइन। इसका मतलब आपके लंग्स को इन्वॉल्वमेंट होनी शुरू हो गई है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और डॉक्टर से इस समय हम सब डॉक्टर्स, मैं आई एम प्राउड टू से गंगाराम में भी और भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में भी हमारे सारे फिजिशियंस इस समय जुटे हुए हैं वीडियो में समझाने के लिए, वीडियो कंसल्टेशन करने के लिए। सब डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं कि ये मेडिसिन शुरू करें, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, जिंक एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूं, मगर डॉक्टर को कंसल्ट करके आगे चले। सिमिलरली अगर आपको लगता है 6 मिनट वॉक टेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज 6 मिनट वॉक टेस्ट, अगर 6 मिनट तक आप अपना सैचुरेशन लगाए रखें, राइट, और अगर सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर पे 94, 95, 97 आ रहा है और 6 मिनट्स तक लगातार कमरे के अंदर, आइसोलेटेड कमरे के अंदर चलते रहें, और उसके बाद अगर आपका ड्रॉप होना शुरू हो गया है, 90 आ गया है, 89 आ गया है, दैट मीन्स अगेन इट इज ए रेड फ्लैग साइन। इसका मतलब आपकी लंग्स इन्वॉल्व होने वाले हैं या हो रहे हैं, तो आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और प्लीज इस समय मैं आपके माध्यम से ये सबको कहूंगा कि प्लीज डॉक्टर्स को सिर्फ ये ना फोन करो कि हमें आईसीयू बेड चाहिए या आईसीयू वेंटिलेटर बेड चाहिए, आईसीयू ऑक्सीजन बेड चाहिए। नो, यू शुड टेल, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम टैकलिंग ऑल दोस फोन कॉल्स बाय गिविंग देम ए वीडियो कंसल्टेशन कि मुझे पेशेंट से बात कराओ, अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ये डॉक्टर्स भी छोड़ो, ट्रस्ट करो डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स शुड डिसाइड कि हाँ अब इनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या नहीं है, और उस तरीके से ट्रीट करो। अगर ये रेड फ्लैग साइन, दैट मींस फीवर बढ़ता जा रहा है, सांस में चैलेंज आ रहा है, और आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम कम होता जा रहा है, और दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, तो कॉम्प्लिकेशंस का जब टाइम शुरू हो चुका है, उस समय डॉक्टर की कंसल्टेशन करके फिर ये ब्लड टेस्ट कराएं। और ब्लड टेस्ट मींस सीआरपी और डी डाइमर, एलडीएच, IL-6 एटसेट्रा। और अगर डॉक्टर आपके एडवाइस करते हैं सीटी स्कैन कराने के लिए, तो सीटी स्कैन कराएं। और अगर सीटी स्कैन में भी आप इस समय हम सब जानते हैं कि सीटी स्कैन भी ना 3 वैरायटी के हैं, इन द सेंस की माइल्ड डिजीज, मॉडरेट डिजीज, सीवियर डिजीज। अगर सीटी स्कैन में 25 के स्कोर में से अगर 8 स्कोर से कम आया, दैट मींस इट इज ऑन दी माइल्डर साइड, और 8 से 15 का आया तो मॉडरेट इन्फेक्शन है, और 15 से ज्यादा अगर इन्फेक्शन आया, स्कोर 15/25 से ज्यादा आया, इसका मतलब सीवियर साइड इन्फेक्शन हो रहा है। तो उसकी डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ आगे मैनेज करें, सो दैट वो जो फेज है डिजीज इनटू कॉम्प्लिकेशंस वो ना कन्वर्ट हो जाए। तो जब अगर डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ इस समय आपका सीटी स्कोर, कोरैड स्कोर 15 हो चुका है और आपको ये कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है, डेफिनेटली गो इन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, और हॉस्पिटल में एडमिट होके अंडर द गाइडेंस ऑफ द ट्रीटिंग फिजिशियंस गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, सो दैट उस समय भी ये चीजें तो करनी है, प्रोनिंग, प्रोटीन, फ्लूइड्स एंड व्हाट नॉट, बट आपने साथ में मेडिसिन भी लेनी है। खुद ना अपना डॉक्टर बने, डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, विश्वास करें, और जीत हमारी है। Thank you, sir. Thank you very much. Sir,
दे आर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस जो फ्लोट कर रही हैं एंड जैसे पता चलता है कि कोविड है तो एक दूसरे से पूछकर सारी मेडिसिन शुरू हो जाती है, जिनमें से स्टेरॉइड्स भी हम देख रहे हैं कि लोग जल्दी शुरू कर देते हैं. सो व्हाट इज द इंडिकेटर कि कब स्टेरॉइड शुरू होने चाहिए और कब सीटी स्कैन होना चाहिए और कब बायोमार्कर्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है और लोग बार बार सीटी स्कैन्स कराते जा रहे हैं. वेरी गुड क्वेश्चन. मैं इसके लिए ना सिंपल भाषा में कहूंगा कि टू बी ट्रस्टेड इज ए ग्रेटर कॉम्प्लीमेंट देन बीइंग लव्ड. राइट, यू हैव टू हैव ट्रस्ट इन योर डॉक्टर. इस समय और पूरे, मैं सॉरी टू से, पूरे मंदिर, पूरे गुरुद्वारे, पूरे गिरजाघर सब बंद हैं या खाली हैं, सिर्फ अस्पताल भरे हुए हैं. कहने का सिर्फ मतलब है अगर ट्रस्ट है तभी अस्पतालों में भरे हुए हैं ना, अगर वो कुछ कर सकते हैं तभी डॉक्टर्स की मदद की जरूरत है ना. तो उसके लिए डॉक्टर अपने डॉक्टर से फोन करें. प्लस जैसे मैंने बताया कि 5th to 8th डे अगर आपके ये रेड फ्लैग साइन आने शुरू हो गए, फीवर बढ़ रहा है, सांस में दिक्कत आनी शुरू हुई है, ब्रेथलेसनेस शुरू हुई है, खांसी सीवियर होती चली जा रही है, तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स सीटी स्कैन. बट again I am mentioning there is no role of repeat CT. No, but leave it to the doctor. डॉक्टर ने अगर समझा कि हाँ, अगर पहली बारी में जब सीटी स्कैन कराया उस समय 8 से 15 के बीच में स्कोर है, दैट मींस मॉडरेट डिजीज है, डेफिनेटली यू नीड सम काइंड ऑफ डॉक्टर एडवाइस एंड हॉस्पिटलाइजेशन. सो उसके लिए तैनात रहना चाहिए. और ब्लड टेस्ट भी डॉक्टर की एडवाइस पे कराएं, अपने आप मत करें. तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, स्टेरॉइड्स का. आई नो देयर आर पेशेंट्स हु, उनको समझ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, एक डॉक्टर पे विश्वास भी नहीं करते, वो किसी भी डॉक्टर पे, चाहे वो होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, केमिस्ट एंड व्हाट नॉट पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं. उसकी वजह से स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं. उसकी वजह से हो सकता है कि स्टेरॉइड ओवर टॉक्सिसिटी कर दे, स्टेरॉइड्स को ज्यादा ले लेते हैं जितनी जरूरत नहीं है. तो इसके लिए 5 से 8 दिन तक उससे पहले स्टेरॉइड नहीं लेना. अगर हम कॉम्प्लिकेशन फेज में जा रहे हैं तो स्टेरॉइड्स का या इंजेक्शन, फॉर एग्जांपल ब्लड थिनर्स का कुछ रोल है, बट लेट द डॉक्टर डिसाइड. व्हाई शुड यू डिसाइड, व्हाई शुड यू प्ले विद योर ओन बॉडी. तो मैं दोबारा से ये कहूंगा कि स्टेरॉइड्स भी अपने आप से नहीं लो, डॉक्टर की एडवाइस में लो. और अगर ब्लड थिनर्स भी लेने हैं तो डॉक्टर की एडवाइस लो. और उस समय जब वो टेस्ट कराएंगे, चाहे वो डी डाइमर टेस्ट है अगर बहुत ज्यादा हाई होगा, IL-6 अगर बहुत ज्यादा होगा, CRP अगर बहुत ज्यादा होगा, या जो काउंट्स हैं वो ज्यादा होंगे, तो डेफिनेटली डॉक्टर विल टेक द कॉल सीइंग द पेशेंट एंड द रिपोर्ट्स. मेनी टाइम्स, मैं अभी दोबारा से इसी तरीके से कहना चाहता हूं, मेनी टाइम्स पेशेंट्स मुझे फोन करते हैं, सर हमारा CRP बहुत हाई है. मैं कहता हूं पेशेंट को ट्रीट करना है या CRP को ट्रीट करना है. इस समय तो वो कहते हैं ना, सी दी होल ऑफ द पेशेंट, नॉट दी होल ऑफ द पेशेंट, कि वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट. पेशेंट्स ठीक होने चाहिए हमारे. अल्टीमेटली CRP तो समय लग सकता है, इन्फेक्शन का इंडिकेटर है, उसको समय लग सकता है, पर यह मतलब नहीं है कि सिर्फ CRP के ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर को फोन कर रहे हो. आपको पेशेंट के लिए ट्रीट करना है, पेशेंट को ठीक होना है, उसके लिए इन टोटलिटी फोन करें. इन द सेंस कि मैं अभी, जैसे मैंने बताया, मेरे पास वीडियो कॉल्स 200 के करीब मैं वीडियो कॉल्स करता हूं, मगर उसमें पेशेंट्स को कहता हूं कि पहले अपने सारी जितने भी टेस्ट कराए वो मुझे भेजो, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप में देखने के बाद मुझे वीडियो कंसल्टेशन करो, सो दैट आई कैन गाइड यू प्रॉपरली कि यस, यू कंटिन्यू विद योर होम आइसोलेशन, you continue with your physician, you continue to come to the hospital, or you need a ventilator also immediately. And plus इसमें मैं थोड़ा सा एक कैच डालना चाहता हूं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट योर कोमॉर्बिडिटीज. ज्यादातर लोग इस समय भूल चुके होते हैं कि मैं डायबिटिक भी हूं, हाइपरटेंशन भी हूं, हार्ट डिजीज भी है, ओबेसिटी भी है. इतने पिछले 1.25 साल में ये देखा गया कि जो ओबीस पेशेंट्स थे, सबसे ज्यादा डेथ्स उन्हीं लोगों की हुई. Of the total number of patients who have died in COVID infection in US, in Italy, in all over countries, 74% have been obese. 13% people had the diabetes.
13% पीपल हैड दी हाइपरटेंशन। तो अपनी उस ट्रीटमेंट को भी मत भूलो, उसको भी ध्यान रखो कि उसका भी इलाज चलता चला जाए, और उसके बाद इसका भी ध्यान रखो बाय कंसल्टिंग ए डॉक्टर और ए हॉस्पिटल। या सुप्रिया, We have questions in the chat box. Sure. First question from Mr. Sujit. Is it okay to give plasma donation if the donor has had one dose of anti-COVID vaccination and has now been COVID negative? नो, इसमें अगेन मैंने पहले आपको एक्सप्रेस किया कि आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ ऑल दिस, बट आई वुड से कि स्टिल देयर इज ए अनसर्टेनिटी। ज्यादातर लोगों का ये आंसर इसका ये है कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, उसके बाद आप 3 से 4 हफ्ते के बाद डेफिनेटली प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, मगर वैक्सीनेशन से पहले डोनेट कर सकते हैं। पर ये सोचना कि वैक्सीनेशन 1 डोज हो चुकी है और उसके बाद आप प्लाज्मा दे सकते हैं, वो गलत है। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य, और प्लस प्लाज्मा का रोल भी अभी भी कंट्रोवर्शियल है। कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ लिटरेचर ये कहता है कि यस, प्लाज्मा का कोई भी रोल नहीं है। कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ डॉक्टर्स, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि ये डिजीज सिर्फ 1.25 साल पुरानी है, राइट? और 1.25 साल में इसने ये तो हमें प्रूव कर दिया कि इट इज अ डिजीज ऑफ अनसर्टेनिटीज। टुडे नोबडी नोज कितनी एंटीबॉडीज बन रही हैं, कितनी देर तक एंटीबॉडीज बनेंगी, कोविड होने के बाद कितनी एंटीबॉडीज रहेंगी, कितने टाइम तक रहेंगी, वैक्सीन होने के बाद कितनी एंटीबॉडीज रहेंगी, एक शॉट के बाद, दूसरी शॉट के बाद, किसी को अभी तक सर्टेनिटी नहीं हुई है। इतना स्मार्ट वायरस है ये। तो इतना स्मार्ट अगर वायरस है, इतना स्मार्ट दुश्मन है, तो उसको बहुत ही ध्यान से टैकल करना चाहिए। हमें अननेसेसरली, अभी पिछले दिनों में आपने भी देखा, रेमडेसिविर और बाकी सारे इंजेक्शंस, इनके पीछे होड़ लगी हुई है, होर्डिंग करने की। तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी वन हैज टू बी केयरफुल। पेशेंट्स मुझे फोन करते हैं या हमारे फिजिशियंस को फोन करते हैं, सर आपके पास ऑक्सीजन बेड तो है? यस। आपके पास रेमडेसिविर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपके पास टिक्लोमेसिन आ रहा है? जब आ रहा नहीं, व्हाट आई मीन टू से, प्लीज डू नॉट टेक द ट्रीटमेंट इन योर हैंड्स। Let the doctor decide whether you need to donate plasma or you want to have plasma to combat the disease. तो इसके लिए आप डॉक्टर्स पे विश्वास करो। और डॉक्टर्स के भी अंदर की बात यही है कि अभी काफी ज्यादा फ्लूइड स्टेट है, अभी जिसको कहते हैं ना कि बहुत रिसर्च चल रही है, काफी हद तक कंसेप्ट्स आ रहे हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, जैसे कि अमेरिका में रेमडेसिविर दिया ही नहीं गया और पेशेंट्स फिर भी ठीक हुए। और सिमिलरली यहाँ पे हर पेशेंट कहता है कि मुझे रेमडेसिविर पहले दे दो। तो ऐसा नहीं है। तो हमें इस वेव को इकट्ठे टैकल करना है, साथ दो, सलाह मत दो। Thank you, sir. So the next question from Miss Nidhi. Sir, I have had first dose of vaccine and then had corona infection. After how many days should I wait and take the second dose of Covishield? Very good question. 4 to 6 weeks. अगर ऑफ दी नेगेटिव आरटीपीसीआर, अब इसके लिए भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि जब आपको वैक्सीन हुई उसके बाद भी अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ, दैट मींस स्लाइटली यू हैड बिकम कंप्लेसेंट कि कुछ नहीं, अब तो वैक्सीन हो गई, अब तो मास्क भी क्या पहनना, पार्टी करते हैं। और वो सबसे बड़ा जो हम सब इस समय सहन कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी सूडो कॉन्फिडेंस की वजह से सहन कर रहे हैं कि हर बच्चे को, हर बड़े को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी तो वैक्सीन हो गई है, अब क्या मास्क की जरूरत है, अब क्या सोशल डिस्टेंस की जरूरत है, अब तो पार्टी होनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया, आई थिंक फॉर, या रैलीज होनी चाहिए या कुंभ मेले होने चाहिए। तो उस चक्कर में अल्टीमेटली इतना ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया है। तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, प्लीज जब अगर वैक्सीन लग चुकी है उसके बाद भी अगर कोविड हुआ है तो ये डर के रहो कि शुक्र है माइल्ड फॉर्म में निकल गया। और दूसरा, जब आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया और 14, 15, 20 दिन के बाद जब आरटीपीसीआर नेगेटिव आया, तब आप बाहर निकलें, तब आप वायरल शेडिंग नहीं कर सकते। उसके भी 4 से 6 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज वैक्सीन का लगवा लें। Sir, Mrs. Ekta also had a similar question. I know of people who have had the jab and have contracted corona after that.
So I think it sort of answers the question. We have Mr. Gaurav Sood asking. Just a second. Supriya, Haan ji, sir. I would again, with the help of this question only, I would request all of you, everyone and anyone, कि प्लीज डू नॉट थिंक कि अगर हमारी वैक्सीन हो गई है तो हमें एसएमएस नहीं करना है. एसएमएस फिर भी फॉलो करना है. और अगर वैक्सीन हो भी गई हैं, अगर आपको कोविड हो भी गया इन्फेक्शन, तो हो सकता है, ये नहीं मैं कह रहा 100% सर्टेनिटी है, हो सकता है कि आप माइल्डर फॉर्म में ही बाहर निकल आओगे. मगर वी हैव सीन डॉक्टर्स डाइंग इज द वर्ड. मेरा बैचमेट थे हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में, ही हैज डाइड आफ्टर गेटिंग द swine flu infection last year, COVID infection last year. This year he had both the shots of COVID vaccine, and still he has died yesterday only. So what I mean to say, please do not think कि सिर्फ वैक्सीन से हम बाकी सारे एसएमएस को छोड़ दें. No, हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमें इन्फेक्शन होता भी है तो वो माइल्डर फॉर्म में निकल जाएगा और वो मॉडरेट में ना बदले, सीवियर में ना बदले. ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यस सुप्रिया. So the next question is, government is saying Covishield should be taken between 8 to 12 weeks, which was 4 to 6 weeks earlier. What is the right time framework? As Mr. Gaurav Sood says that his parents had already taken the first dose. I would put it this way. मैंने ये पहले बोला ना कि साथ दो सलाह मत दो. Right? What I mean to say कि इस समय जो साइंटिफिकली प्रूवन डाटा था वो यही था कि कोवैक्सिन अगर वैक्सीन लगी है तो 28 दिन के बाद दूसरी शॉट लगनी चाहिए टू हैव द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द एंटीबॉडीज. जो कोविशील्ड थी वो पहले शुरू में हम सबको गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑर्डर आया जब हम भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में भी या गंगाराम में भी वैक्सीन दे रहे थे, या हमने जब लगवाई थी कि 28 दिन पे आप लगवाएं सो दैट अल्टीमेटली एंटीबॉडीज मैक्सिमाइज हो सके. मगर कुछ समय के बाद कुछ कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई तो गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया कि नहीं, इनको 4 वीक्स के बाद नहीं बट कि 6 to 8 वीक्स के बाद दें तो मैक्सिमाइज हो सकती हैं एंटीबॉडीज. बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. आई एम नॉट क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट्स, बट आई वुड पुट इट दिस वे, वो बाकी सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए कही गई थी कि पता नहीं पीछे से शॉर्टेज ना हो जाए, पीछे से वैक्सीन बन रही है या नहीं बन रही. साइंटिफिक डाटा उसमें कम था. तो मैं आज फिर दोबारा से कहना चाहता हूं कि अगर आपके पेरेंट्स को अगर कोविशील्ड फर्स्ट डोज लग चुकी है तो 6 to 8 वीक्स के बीच में सेकंड डोज लगवा लेनी चाहिए. गवर्नमेंट ने हम सारे हॉस्पिटल्स को वैक्सीन देनी बंद कर दी फ्रॉम 30th अप्रैल. तो अब स्कूलों में वैक्सीन लग रही है तो आप प्लीज जाके नियर बाय स्कूल का पता करें और वहां जाके अपनी वैक्सीन सेकंड डोज लगवा लें सो दैट अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी कम्युनिटी को बचा सकें. So we have Mr. Anuj Mathur asking that there is a talk that immunity goes down in the first 7 days of the second COVID vaccine. Is this true, and what sort of precautions we should be taking after the second vaccine? मैं अनुज को कहूंगा कि मुझे लिटरेचर दिखा दो अगर ऐसी कोई बात. मैंने तो आज पहली बार सुना है ऐसे, पहली बार सुना है कि वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है. तो मैं आई वुड लव दैट ही शुड, यू शुड गिव माय नंबर टू हिम और उसको मुझे कहो कि मुझे फोन करके मुझे लिटरेचर सेंड करे सो दैट मैं भी अपना ज्ञान बढ़ा सकूं. We have Mr. Sachin Gaur. He says, I'm Sachin. My daughter is 12 years old. And she's a tennis player, and she had some symptoms on 8th April around and had a RT-PCR done on 12th, and her report was positive, and was redone on 21st April, and the report was negative. Then he had the symptoms, and I got the RT-PCR done again, but did not have symptoms. I have done my RT-PCR done a test on 7th May and is awaiting the reports again. And my daughter had COVID, had cold, and we again got the test done. Is it possible that a person who is infected can get twice infected in a month's time? इतना लंबा क्वेश्चन की बजाय यही क्वेश्चन पूछ सकते थे ना कि दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता. यस हो सकता है. We know
कि इस समय ये स्टेट है कि कुछ लोगों ने इसको सोचा कि हमें इन्फेक्शन हो चुका है, अब तो हम जैसे मर्जी जिसके साथ मर्जी घूमे। नो, आंसर इज कि एक बार अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ चुका है और इवन इफ नेगेटिव भी हो चुका है, अगर आपने फिर लापरवाही, वो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फिर दोबारा से दुर्घटना हो सकती है, दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है, और हो सकता है कि पहली बार से ज्यादा सीवियर हो। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अगेन एंड अगेन वी शुड कम बैक टू दी बेसिक्स। SMS जो एक सेंचुरी पहले, 100 साल पहले हमने सीखा था कि मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज दूरी जरूरी है, हाथ धोना जरूरी है, वो अभी एक सेंचुरी में भी नहीं हम पूरी तरह से फॉलो कर पाए। तो आई डोंट नो कब तक फॉलो करना सीखेंगे। So Mr. Vivek Thakkar wants to ask how much exposure is needed to get infected if you are in a non-hospital environment. हाउ मच एक्सपोजर मीन्स व्हाट, कि वायरस तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, अदृश्य है, और इतना छोटा सा एक्सपोजर भी, मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे हॉस्पिटल के ही एनेस्थिस्ट है ना, ही इज अराउंड 68 इयर्स ओल्ड, और उन्होंने पूरी प्रिकॉशन ली कि मैंने अभी केसेस नहीं कराने, मेरे को होम में रहना है। पिछले कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेते रहे, मगर उनका बेटा जब बैंगलोर से आया और उसके बाद वो किसी शादी को अटेंड करने गया, और अल्टीमेटली बेटा इन्फेक्शन लेके आया, और बेटे की वजह से पेरेंट्स को इन्फेक्शन हुआ, पेरेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और चैलेंजेस हुए। तो कहने का मतलब ये मत कहो कि हाउ मच एक्सपोजर, एक्सपोजर इज एक्सपोजर, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी वायरल शेडिंग एंड वायरल लोडिंग। अगर मान लो फॉर एग्जांपल सम पर्सन इज ओबीज, तो ओबेसिटी में एडिपोज टिश्यू जितना होता है, ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है कि वायरस जाके बॉडी के अंदर फैट सेल्स के अंदर बैठ जाता है, उससे वायरस का लोड बढ़ जाता है, और उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं, उसके ऊपर जब एक्शन होता है तो वो फिर धीरे धीरे लंग्स को, हार्ट को, सबको इन्फेक्ट करता रहता है, और उसकी वजह से चैलेंजेस आते रहते हैं। तो हमारी सिंपल भाषा में, आप प्लीज डोज मत गिनो कितनी वायरस को डोज चाहिए, वायरस को तो एक बार जगह मिलनी चाहिए, जरा सा फैट सेल मिला नहीं और वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, और वो कितनी दूर, तो कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो थोड़ा सा वायरस भी खूब कहर ढहा सकता है, इसके लिए हम सबको प्रिकॉशन लेना लाजमी है। So just extending his question, he actually also wanted to check that he uses the elevator because staying in apartments. So, and he wears the mask. So what is the risk in that? I would say please, for God's sake, 2 पेंडेमिक्स हैं इस समय, है ना। एक तो पेंडेमिक है कोरोना, और दूसरा पेंडेमिक है ओबेसिटी, और दोनों पेंडेमिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिवेटर्स की है ना। कहने का मतलब अपने आप को फिट रखो। अपने इस समय अगर 1.25 साल में या 1.5 साल में अगर हमें यही नहीं समझ आया कि मेरी हेल्थ, हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम एलिवेटर्स यूज करते रहेंगे, अगर हम अपने लंग्स को कष्ट ही नहीं देंगे, अगर हम सीढ़ियां चढ़ेंगे ही नहीं, तो वो लंग्स कभी भी एक्सपैंड नहीं करेंगे। और प्लस क्लोज्ड स्पेस में, मैं समझता हूं उनका क्वेश्चन, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि एलिवेटर्स को त्याग दो। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में, हमारी ऑपरेशन थिएटर 7th फ्लोर 6th फ्लोर पे है, कभी मैंने एलिवेटर्स यूज नहीं किए। पहले भी, कोरोना एरा से पहले भी, मगर उसके बाद अभी भी नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, अगर वहां पे पंखा चल रहा है, तो यू नेवर नो इस समय हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट जो कोविड प्लस था, वो कितने सारे वायरल पार्टिकल छोड़ के गया है, और वो पंखे से सर्कुलेट होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए कहीं पे भी, चाहे वो बिल्डिंग है, अब तो हम सब ने देख लिया ना कि हमारे आसपास की फैमिलीज ही कितनी सारी इन्फेक्ट हो रही हैं। तो वो इसीलिए हो रही हैं कि अगर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में वायरल शेडिंग हुई और आपने वो वायरस ले लिया, तो आपकी इम्यूनिटी कैसी है, वो इन्फेक्शन बढ़ा सकती है। तो इसलिए प्लीज ट्राई टू एक्सरसाइज एज मच एज पॉसिबल, यूज स्टेयर्स टू डिक्रीज योर ओबेसिटी, टू डिक्रीज द वायरल लोड एंड बी हेल्दी। सर जाए पर सैर ना जाए, अपने आप को फिट रखो। इस समय ये सिखा रहा है, ये कोरोना भगवान मैं बोलता हूं इसको, कोरोना भगवान ये आपको, हम सबको सिखाना चाहता है कि सर जाए पर सैर ना जाए। जान है तो जान है,
हरकत में बरकत है। हरकत, जितनी खुद हरकत करोगे उतनी बरकत होगी। वायरस को हरकत मत करने दो। We have Mr. Jasmeet Singh. I was COVID positive, and after that, my doctor prescribed few tests, in which one was HB1AC. Other test reports have come negative, but now I have been detected with sugar, and I'm worried about this. इनसे, जसमीत से, ये मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इन्होंने स्टेरॉइड्स लिए थे? कुछ लोगों में अगर कोविड हुआ और उसमें एज क्या थी और स्टेरॉइड्स अगर ज्यादा ले लिए थे, डेफिनेटली दे हैव ए प्रोपेंसिटी कि डायबिटीज के फीचर्स आ सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप प्री डायबिटिक होते हो, जब आपको स्ट्रेस होता है तो डायबिटीज के लक्षण आ सकते हैं। तो इसके लिए ये कहना कि सिर्फ कोरोना की वजह से डायबिटीज हो गया, नहीं। ये कहना कि स्टेरॉइड्स की वजह से डायबिटीज हो गई है, यस हो सकती है। तो अगर आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनको भी दिखाएं कि, और टेस्ट और कराएं, HbA1c और बाकी सारे टेस्ट भी कराएं, सो दैट आप प्रूवन हो जाएं कि डायबिटीज है या डायबिटीज नहीं है, बनिस्बत की अपने आप से अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। We have Mr. Saurabh Mehra asking, how much time does it take to develop antibodies in case of vaccination after 2 doses in case of senior citizens and young people? यस, यही मैंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 वीक्स में अगर हम एंटीबॉडीज आफ्टर 2 डोजेस ऑफ वैक्सीनेशन कराएं तो डेफिनेटली वैक्सीन एंटीबॉडीज का लेवल अच्छा आ जाता है। पर मैं दोबारा से कहूंगा, हमारे डॉक्टर्स फ्रेंड्स ने, काफी लोगों ने कोविड हुआ, उसके बाद एंटीबॉडीज कराई तो पता लगा कि बहुत ही कम एंटीबॉडीज हैं। सिमिलरली कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स ने कोविड की दोनों वैक्सीन ली और फिर एंटीबॉडीज कराई तो पता लगा कुछ लोगों की तो बहुत अच्छी एंटीबॉडी लेवल था, पर कुछ लोगों को बहुत ही कम एंटीबॉडी लेवल था। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस समय पहली चीज है प्रिकॉशन, 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 एंड फिर उसके बाद एंटीबॉडीज को जज मत करते रहो, अपनी तरफ से सेफ्टी प्रोफाइल पे चलते चले जाओ। इट इज ए टाइट रोप वॉक। Make sure that you are not giving the virus to somebody and you are not taking the virus from somebody. So अपनी precautions रखो, antibodies के numbers के ऊपर मत रहो। We have Dr. Samit asking, do you feel vaccination drive should have been more stringent, and would vaccinating young before old would have helped better? No, I would put it this way. इस सेंटेंस में, इस संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि मैं थोड़ा सा प्लस 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 पॉइंट देता हूं गवर्नमेंट को कि उन्होंने हम सीनियर सिटीजन्स की तरफ देखा और हम सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन देने के लिए पहले प्रोत्साहित किया। इन द सेंस कि हम सब जानते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं टू वायरस, तो इसलिए उन्होंने वैक्सीन को एनकरेज किया कि इनको देना चाहिए। फिर उसके बाद 65 एंड अबव को दिया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर 45 एंड अबव। बट माय ऑनेस्ट फीलिंग इज द क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है कि उसमें और ज्यादा ड्राइव होनी चाहिए थी और हम सब में भी होनी चाहिए थी। मैं इसलिए ये थोड़ा सा मुझे मन में ना दुख होता है जब मैं ये बोलता हूं कि जब हम हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लग रही थी, इतने सारे हॉस्पिटल स्टाफ, इतने सारे डॉक्टर्स लगवाते नहीं थे, डरते थे कि कहीं एलर्जी हो जाएगी, कहीं ये हो जाएगा। जब हम सब देख चुके थे कि इतने डॉक्टर्स, आप ये सोचो कि कोवैक्सीन जो है 1.1 करोड़ लोगों को लग चुकी है, कोविशील्ड 11.6 करोड़ लोगों को लग चुकी है। उसके बाद भी अगर आप डर में रहोगे तो फिर डरते रहो। तो इसलिए होना क्या चाहिए था कि हमें अपना डर खत्म करना चाहिए, वैक्सीन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और प्लस मैं दोबारा से स्पेशली यंग लोगों को प्रोत्साहित करूंगा कि नहीं, आप फेसबुक पे डालो कि देखो मैंने वैक्सीन लगवा ली, आई एम सेफ, माय वायरल लोड इज लेस, आई विल नॉट स्प्रेड द वायरस। तो माय थिंकिंग इज लेट अस take the collective responsibility to get vaccinated as much as possible, to motivate people for vaccination as much as possible. साथ दो। जब गवर्नमेंट का भी हम साथ देंगे तो डेफिनेटली जीत जाएंगे इस दुश्मन से। Miss Shemu, she says, I was COVID positive in November 2020, and my pulse rate is still persisting above 100. I do work out daily for half an hour, running, walking. How much is it dangerous with this high pulse rate? I would not say कि dangerous,
बट आई वुड स्टिल से कि अब दैट इज द नॉट द राइट टाइम। थोड़ा सा ये वेव ठीक हो जाए, ये कोविड की जो अभी समय सुनामी चल रहा है उसको ठीक हो जाए, फिर आप अपने आप को इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएं। अपना एज, आई डोंट नो व्हाट इज हर एज, बट अपना ईसीजी, इको, देन कार्डियोलॉजिस्ट रिव्यू, ये सब कराएं, क्योंकि हम सब ने ये देखा कि ये जो वायरस है ये लंग्स को तो इन्वॉल्व करता ही करता है। इंटरस्टिशियल लंग वाले पेशेंट को, डिजीज वाले पेशेंट्स को, या इवन स्मोकर्स को। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, जब मेरा पिछला वेबिनार था तो he was also listening. I did not know Hansai Model School Punjabi Bagh वाला, तो he also was listening, and that very day he stopped smoking. जब मैंने कहा कि अपने लंग्स को चैलेंज मत होने दो, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो और अपने लंग्स को चैलेंज ही कर रहे हो, फिर आप कोरोना से क्यों डरते हो? फिर तो आने दो वायरस को, क्या पड़ता है, रोज तो आप वायरस ले ही रहे हो। तो उसी दिन मेरे फ्रेंड ने स्मोकिंग छोड़ दी और आज तक छोड़ी हुई है। सिमिलरली अगर हार्ट की कोई भी चैलेंज आया है, अगर आपको लगता है कि हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो प्लीज गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड और उसमें प्रूव या डिसप्रूव कर लो कि कोई बीमारी है हार्ट की या नहीं है। अगर तो ईसीजी, इको, स्ट्रेस इको एंड बट नॉट, अगर ये सारे टेस्ट ठीक हैं, कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन ठीक है, तो यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि ये लंग्स को और प्लस वायरस जो है ये मायोकार्डाइटिस भी करता है, ये हार्ट की मसल्स को भी इफेक्ट करता है। इसलिए डेफिनेटली टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट एंड डेफिनेटली गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड, इन्वेस्टिगेटेड, treated by a cardiologist. We have Ms. Nidhi asking that people are going to hospitals to get the vaccine done. Is it sort of advisable, the hospitals which have COVID patient as well? Is it a good thing that the vaccine centers should not now be separated from the hospitals? अब मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल साहब ने और मोदी साहब ने निधि को ही ना सुना हो। कहने का मतलब, कुछ समय पहले तक सभी हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था। 250 से 300 वैक्सीन हम रोज लगाते थे भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल, मगर 30 अप्रैल के बाद हमें कोई वैक्सीन नहीं दी जा रही और हम अब किसी पेशेंट्स को नहीं दे पा रहे। मगर उन्होंने, गवर्नमेंट ने कुछ सोचा होगा, लॉन्ग टर्म सोचा होगा, और उन्होंने अब स्कूलों में ये वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मगर मैं दोबारा से कहूंगा कि इस समय हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अगर अनटिल अनलेस आप इन्फेक्शन इनवाइट करने जाते हो, जाना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि यस, पर वैक्सीनेशन कराने के लिए स्कूल तो जाओ, वैक्सीनेशन तो कराओ, बहाने मत ढूंढो कि हॉस्पिटल में हो रही है इसलिए मैंने वैक्सीन नहीं कर। यहाँ हमारे हॉस्पिटल में इस समय जो फ्लोर्स थे वो भी डिफरेंट थे, कोविड के वार्ड अलग थे, वैक्सीनेशन की जगहें अलग थी। मगर ठीक है, अब हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन नहीं हो रही, अब सिर्फ स्कूलों में हो रही है। वो आप नियर बाय स्कूल में जाएं और प्लीज वैक्सीनेशन लगाएं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हमने फ्रॉम भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल एक लेटर भेजा कि हमारे को वैक्सीन दी जाए। हम प्राइवेट में पेशेंट्स को देने को तैयार हैं, हमारा सिस्टम इतना अच्छा डेवलप्ड है कि एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन ए सिस्टम। पर हमें एक बहुत ही सिंपल सी अच्छी सी ईमेल आई, यस वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न फॉर सर्विंग द ह्यूमैनिटी एंड वी विल बी बैक विद यू आफ्टर 6 months with the vaccine. So my purpose is defeated. So what I mean to say, 6 महीने के बाद अगर हम हॉस्पिटल्स वालों को वैक्सीन देंगे तो उसमें कितना डैमेज तब तक हो चुका होगा, यू नेवर नो। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है निधि को भी और बाकी सब श्रोताओं को कि प्लीज पता करें, स्कूल में जो भी पास में स्कूल है जहां से भी वैक्सीन लग सकती है लगवाएं, सो दैट हम हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। So it's already 8. I have a couple of more questions, but I'll be taking 2 questions only. Mr. Supriya, no, I would say until unless you have the time crunch, I don't have the time crunch. Sure, sir. हाँ, मेरी फीलिंग ये है कि अगर हमारे ऑडियंस को, हमारे और ऑर्गेनाइजर्स को कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर हम किसी एक लाइफ में एक भी चेंज कर सकते हैं, व्हाई नॉट। I am ready to answer till midnight also, but if you have some time constraints, it is all up to you. Thank you, sir. We have Mr. Amit Mishra. He says, I have a question for the third phase, which will be critical for below 18-year children.
What precautions would be beneficial for children, as children cannot keep them safe self properly as comparison to adults? And in the third phase, parents have to save their children also. So please help us to know about the management for that situation. It will be early to ask, but we want to know the necessary measures we should be taking to help the society. Mishra, Anup Mishra. What was his name? Amit Mishra, sir. Amit Mishra. Amit, nice question. I would put it this way. इसके लिए ना मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. और स्टोरी क्या थी कि एक फार्मर था, उसका एक समुद्र के किनारे पे फार्म हाउस था, और उस फार्म हाउस में उसके पास बहुत सारे एनिमल्स थे, साइकिल्स थी, बहुत सारे जैसे हे होता है ना, जो भूसा होता है, उसको तारपलिन वगैरह लगाना पड़ता है, तो वो था. तो वो बार बार एडवर्टीजमेंट देता था. अटलांटिक ओशन के किनारे पे उसका फार्म हाउस था. तो बार बार वो एडवर्टीजमेंट देता था कि मुझे अपने लिए कोई हेल्पर चाहिए, और हेल्पर अगर मेरे फार्म हाउस का ध्यान रख सके तो मैं डेफिनेटली उसको अच्छी सैलरी दे सकता हूँ. तो कुछ लोग ज्वाइन करते थे और कुछ दिनों के बाद ही वो छोड़ के चले जाते थे. क्यों? क्योंकि उस समुद्र के अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर खूब तेज स्टॉर्म आते थे और हर एक को डर लगता था कहीं ये पूरा फार्म हाउस ही पानी में ना चला जाए. और कुछ दिन ज्वाइन करते थे, कुछ दिन चले जाते थे. एक इंसान आया, बहुत पतला सा, छोटा सा हाइट का. तो उसने कहा कि सर मैं आपके यहाँ पे काम कर सकता हूँ. उसने कहा कैसे, तुम्हारे में क्या खासियत है? कहता नहीं सर, मैंने रियलाइज किया है कि मैं आपके यहाँ पे काम कर सकता हूँ बिकॉज आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज. आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज. उसने कहा क्या मतलब? कहता मुझे क्या लेना देना, क्या मतलब या नहीं मतलब, ये सर्विस करने को तैयार है. तो उसने उसको जॉब दे दी और एज लक वुड हैव इट ही वाज वर्किंग वेरी गुड. बहुत अच्छा काम करता था सारा कुछ. एक दिन जब स्टॉर्म आ गया रात को, तो ये अपने कमरे से फार्मर उठा और उठ के भागा उस वर्कर के घर पे, उसके रूम में, और जाके उठो उठो उठो, जल्दी करो स्टॉर्म आने वाला है, जल्दी करो स्टॉर्म आने वाला है, थर्ड वेव आने वाली है फॉर एग्जांपल, तो जल्दी से उठो. तो उसने कहा नहीं सर, मैंने जब जो नौकरी ज्वाइन करी थी तो उस समय मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज. तो मैं नहीं उठ रहा, अब आप जाओ जो जाओ. उसको बहुत इरिटेशन हुई फार्मर को कि इसको तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा कि अब स्टॉर्म आने वाला है और ये सो रहा है. तो उसने जाके बाहर गया और बाहर जाके जब देखा तो हैरान हो गया कि सारा जो एनिमल्स थे अच्छी तरह से बंधे हुए थे, साइकिल्स ये व्हाट्सएवर अच्छी तरह से जहां पे होना चाहिए था. जो हे टैक्स थे, जो भूसे के ढेर होते हैं या बाकी सारी चीजें थी, बिल्कुल इसी तरीके से फिक्स थी जैसे कि अगर स्टॉर्म आ भी जाएगा तो भी नुकसान नहीं होगा. कहने का मतलब आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज मींस प्रिपेयर्डनेस. Yes, you are right, Anup. You have to be prepared. And please do not tell me that children are not to be prepared. Children are more intelligent than all of us. उनको अगर हम ये मन में समझा दें कि गाइड करना बहुत लाजमी. इस समय आप ये सोचो कि 18 से 25, 30, 40 साल की जो एज के बच्चे हैं, वो इतने अच्छी तरीके से मोटिवेटेड हैं कि हमें तो वैक्सीन लगानी है. वैक्सीन लगा के अपने आप को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है, अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं. तो अगर हम ये वैल्यूज दे दें कि ये SMS प्लस वैक्सीनेशन, कोशिश यही करें कि बार बार हैंड्स वॉशिंग करें. अपने बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे जब आपके साथ ही हैं घर में, तो उनको ये एजुकेशन देंगे तो चांसेस हैं कि जब ये थर्ड वेव आएगी, और आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि ये थर्ड वेव आएगी, और जब ये थर्ड वेव आएगी, अगर हमारे बच्चे, अगर हमारे इस एज के यंग बच्चे भी अगर ट्रेंड हैं, ट्यून्ड हैं एंड वैक्सीनेटेड हैं, तो चांसेस हैं कि आफ्टर मैथ कम होगा. तो लेट देम बी प्रिपेयर्ड, लेट देम बी टॉट. Sir, we have Ms. Priyanka asking which vaccine is better, Covishield or Covaxin? मैं प्रियंका से ही पूछता हूं, अगर मैं कह दूं कि कोविशील्ड बेटर है या कोवैक्सीन बेटर है, मेरी बात मान लेगी? कहने का सिर्फ मतलब यह है कि प्लीज डू नॉट फाइंड द एक्सक्यूजेस. इस समय दोनों वैक्सीन अच्छी हैं. मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कोविशील्ड वैक्सीन जब शुरू की गई और अभी तक 11.6 करोड़ लोग इंडिया में ले चुके हैं. कोवैक्सीन जो है 1.1 करोड़ ले चुके हैं और किसी को कुछ नहीं हुआ. तो बेटर या नहीं बेटर, उससे फर्क नहीं पड़ता है. अल्टीमेटली जो भी वैक्सीन इस समय आपको अवेलेबल है, प्लीज गो हेड एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. बट इसमें राइडर है,
राइडर क्या है कि ये मत करना कि डॉक्टर भाटिया ने बताया था कि कोविशील्ड बेटर है तो फिर पहली डोज तो कोविशील्ड लगवा ली, फिर किसी दूसरे डॉक्टर ने बताया कि नहीं कोवैक्सीन अच्छी है तो दूसरे में कोवैक्सीन लगवा ली। ऐसा नहीं करना। अगर कोवैक्सीन लगवानी है तो दोनों डोज कोवैक्सीन की, अगर कोविशील्ड लगानी है दोनों डोज कोवैक्सीन कोविशील्ड की, अगर आपने फाइजर या मॉडर्ना की अमेरिकन वैक्सीन लगवानी है या स्पुतनिक वैक्सीन लगानी है रशिया की, वेट मत करते रहो। Please, for God's sake, with folded hands, I am telling you, asking you, please do not carry on waiting for which one is better, which one is not better. Go ahead, shoot it, get it, so that ultimately immunity बढ़ाओ। अपनी इम्यूनिटी सबसे पहले बढ़ाओ, उससे दूसरों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उससे कोरोना अपने आप दुश्मन भाग जाएगा। We have Mr. Shubham Swaran asking that my mother is diabetic patient and she takes insulin on daily basis and she has had a mild heart attack in April 2020 but now she is fine. She did had COVID symptoms in November 2020, so he has a question to ask, when can she take the vaccine and can she take it or not? No, she had the infection in which month? November 2020, which were mild. So he wants to ask question that can she take vaccine or not? Sure, she should have been vaccinated. मैं तो ये कहूंगा कि अगर नवंबर में हुआ था, मैंने जैसे बताया ना कि जिस समय अगर कोविड का इन्फेक्शन चल रहा है, दैट इज द ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन की वैक्सीन उस समय नहीं लगानी, राइट? जैसे ही कोविड का इन्फेक्शन आरटीपीसीआर नेगेटिव हुआ, 4 से 6 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए थी और अभी भी देर नहीं हुई है। इसीलिए अभी से कल ही उनको स्कूल ढूंढो और साथ में वैक्सीन लगवा डालो, देर मत करो। और अगर दूसरी बात, सॉरी सुप्रिया जी, दूसरा ये काफी क्वेश्चंस बड़े कॉमन से हैं कि मेरी मदर को डायबिटीज है, मेरी मदर ब्लड थिनर ले रही हैं, मेरे फादर को ये इंजेक्शन चल रहे हैं। नो, देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वैक्सीनेशन एक्सेप्ट फॉर कि इस समय अगर एक्टिव इन्फेक्शन है, अगर कोविड का ही पेशेंट है तो उस समय नहीं लेनी चाहिए, डेफिनेटली नहीं लेनी चाहिए। मगर जब डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, हाइपरटेंशन हो, ओबेसिटी हो, ये तो ज्यादा प्रोन है कॉम्प्लिकेशंस होने के, डिजीज होने के, इसलिए इनको तो ज्यादा जरूरत है। जिनको एलर्जी है, फॉर एग्जांपल मैं एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, सुप्रिया आप भी जानती हो, बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनको हर एनाल्जेसिक से एलर्जी है, तो उसके उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर हमने वैक्सीन लगानी है, रहते तो हम गुड़गांव में पर आएंगे भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में आपके पास, आपकी सुपरविजन में इंजेक्शन लगवाएंगे। मैं कहा ठीक है, गो अहेड। और उन्होंने वैक्सीन लगवाई, हमारे एनएसएस डॉक्टर चोपड़ा ने उनको स्टेरॉइड दिए पहले और उसके बाद वैक्सीन लगाई और उसके बाद ऑब्जर्वेशन मान लो 1-आधा घंटे के लिए हम करते हैं किसी पेशेंट की, तो उनकी हम ऑब्जर्वेशन 1 घंटे की कर ली और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि प्लीज डू नॉट बिलीव ऑन एक्सक्यूसाइटिस। एक्सक्यूजेस ढूंढते रहो कि ये वैक्सीन अच्छी है या वो अच्छी होगी, तो लूंगा, मंगलवार होएगा तो लूंगा, ये नहीं है। आंसर ये है कि कोई भी बीमारी, अगर फॉर एग्जांपल ब्लड थिनर्स, अगर पेशेंट ब्लड थिनर्स पे भी हैं तो भी वैक्सीन लेनी चाहिए, चाहे वो इकोस्पिन हो या क्लोपिडोग्रेल हो। अगर मान लो कोई और मेडिकेशन चल रही है, अपने डॉक्टर से पूछो कि सर मैंने वैक्सीन लगवानी है, मेरा आईएनआर इस समय नॉर्मल है तो मैं वैक्सीन लगवा सकता हूं? यस। अगर मेरा आईएनआर थोड़ा सा ज्यादा है तो वो डॉक्टर अपने आप उसकी डोज को ठीक करेंगे और उसके बाद वैक्सीन लगाएंगे, उससे एडवांटेज मिलेगा। यस, गो अहेड। ना म्यूट हो गया। Mr. Shiv Kumar Verma asking, my 81-year-old friend had second vaccine on 15th April and soon thereafter started to have fever which had been continuing for last 20 days in the range of 99 degree to 101. The patient is also severely constipated and is continuing to take laxative. What is your advice for the treatment and should she get admitted to the hospital? आई वुड से कि पहली चीज है कि अगर ये प्रूव या डिसप्रूव करो बाय गेटिंग दी आरटीपीसीआर डन कि अभी कोविड तो इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा। इवन इफ जैसे उन्होंने बताया कि 2 डोज वैक्सीन की लग चुकी हैं तो भी कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। अगर उनको फीवर आ रहा है तो प्लीज गेट हर टेस्टेड विद द आरटीपीसीआर टेस्ट, और अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है तो ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट, अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ आरटीपीसीआर इन्फेक्शन विद कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो अपनी पहले लेक्सेटिव लेते हैं वो लेते रहे, मगर इस समय
एक साइड पे शेर है और एक साइड पे बिल्ली खड़ी है, तो शेर का ध्यान रखोगे या बिल्ली का ध्यान रखोगे? तो कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना है, मगर उससे ज्यादा अपने कोविड इन्फेक्शन का ध्यान रखें कि अगर कोविड इन्फेक्शन है तो और एज 81 है तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड डॉक्टर शुड गाइड यू कि यस एडमिशन इज नीडेड और नॉट. So we have Dr. Chandresh asking the role of methylene blue, intravenous and sublingual. वंडरफुल. इजी एनासिस्ट और व्हाट? आई डोंट नो कौन है, मगर कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे पास कुछ डाटा लोगों ने भेजा भी है कि यस मिथिलीन ब्लू से डेफिनेटली एडवांटेज मिलता है और मिथिलीन ब्लू के से लोगों ने प्रूव या डिसप्रूव पूरी तरीके से अभी तक नहीं किया है कि यस कोरोना फ्री हो जाएगा, पर देयर आर सम स्टडीज गोइंग ऑन कि मिथिलीन ब्लू डेफिनेटली हेल्प्स. तो इसके लिए ना कुछ एक छोटी सी तोड़ है विच इज आई वुड नॉट से इट इज फाउंडेड बाय दी. फॉर एग्जांपल जैसे आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज कर रहे हैं, राइट? अब जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज कर रहे हैं उसका जो फ्लो मीटर होता है, जो उसका ह्यूमिडिफायर होता है, अगर उसमें आपने सिर्फ पानी भरा है और वो पानी रेगुलर चेंज नहीं कर रहे हैं और चांसेस हैं कि वो थोड़े टाइम के बाद आपको म्यूकर माइकोसिस या इन्फेक्शन वगैरह कर सकता है, तो उसके लिए कुछ लोगों ने ये प्रूव किया कि उसमें 1 या 2 ड्रॉप मिथिलीन ब्लू डाल दें तो उसकी वजह से आपको शायद म्यूकर माइकोसिस या इन्फेक्शन, नेजल इन्फेक्शन वगैरह, वायरल इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन ना हो. पर डेफिनेटली अगेन आई वुड पुट इट दिस वे, क्योंकि ये खुद ही डॉक्टर है, अगर एनालिस्ट हैं या कुछ और है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि और ज्यादा रिसर्च को सर्च करें और उसके बाद एक बिलीफ बनाएं कि यस मिथिलीन ब्लू हेल्प्स और नॉट. We have Mr. Gaurav Mishra asking that the second wave is still there and we are talking about the third wave. Why is it that India is more affected and not other countries which are that much affected? गौरव, आपने पिछले बार भी शायद ये अटेंड किया था वेबिनार, और अगर तो उस समय ये पूछा था और उस समय इतनी सांत्वना दे रहे थे हम अपने आप को, हम सब, और मोदी साहब को भी कह रहे थे कि हाँ आपने तो कमाल कर दिया कि हमारे इंडिया में इतना इफेक्ट नहीं हुआ. मैं दोबारा से आप सबका भ्रम दूर करना चाहता हूं कि वायरस किसी को नहीं देख रहा है, वायरस देख रहा है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड है. अगर आपका प्रिपेयर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपकी पब्लिक, आपके लोग रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं कि मास्क को नाक पे, मुंह पे लगाना है, ना कि गर्दन पे. मुझे इतना दुख होता है, मेरे को किसी ने पिछली बार भी कहा कि मैं पॉलिटिशियंस को, आई एम नॉट नेमिंग दोज पॉलिटिशियंस, कि फोटोज देखते हैं हम और पता लगता है कि भाषण दे रहे हैं कि हाँ मास्क लगाना चाहिए और बिल्कुल ऐसे लगाना चाहिए, और मास्क खुद का नाक के इसमें गर्दन के ऊपर होता है. तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज ये मत सोचो कि इस बार ये वेव ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिया को क्यों है, क्योंकि हमने प्रिपेयर्डनेस कम रखी. मैं दोबारा कहता हूं, अभी भी वक्त मिला है. तो अगर हमें इस बार भी अपने आप की ऑक्सीजन, अब आज इस बार समझ आती है कि ऑक्सीजन की एक एक बूंद कितनी कीमती है. इसलिए अपने आप को सेफ रखो, अपनी ऑक्सीजनेशन को सेफ रखो. फ्लाइट के अंदर हम चढ़ते हैं ना, तो वो एयर होस्टेस भी कहती है पहले अपनी ऑक्सीजन का ध्यान रखो, फिर पड़ोसी की ऑक्सीजन का ध्यान रखो. सिमिलरली इस समय अपनी हेल्थ का ध्यान रखो. थर्ड वेव भी आएगी और उसके लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार को हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खूब इंप्रूव कर देना चाहिए. वो करे या ना करे, हम सबको मिलके सलाह ना देके, साथ देके इंप्रूव कर देना चाहिए, सो दैट वी आर इन ए बेटर प्रिपेयर्ड पोजीशन टू टैकल दिस थर्ड वेव. सो मेरी रिक्वेस्ट है, लेट अस बिलीव ऑन प्रिपेयर्डनेस. We have another question where somebody is asking, my wife is 4 months pregnant. Should she go for vaccination? Yes, अभी जो पिछले दिनों में ये क्वेश्चनेबल था, राइट? कि इवन इन यूएस जो फाइजर की वैक्सीन है या मॉडर्ना की वैक्सीन है कि प्रेगनेंसी में दे सकते हैं या नहीं दे सकते, नॉट मेनी स्टडीज हैव बीन डन. तो इसके लिए मैं ये कहूंगा, मेरे को विश्वास मत करो, अपने इंटरनेट सर्च भी करें, और प्लस जो डे इन एंड डे वन वैक्सीनेशंस दे रहे हैं उनका डाटा ढूंढो कि वैक्सीन ये प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है. मेरे समझ में अभी सेफ्टी नहीं चेक की गई है, अभी सभी अप्रूव नहीं किया गया है कि यस इट इज सेफ.
तो फाइजर वालों ने अभी कुछ स्टडीज करी हैं, मॉडर्ना वालों ने कुछ स्टडीज दी हैं कि यस इट कैन बी गिवन। उन्होंने 12 साल की उम्र के बियॉन्ड भी वैक्सीन देनी शुरू कर दी है, मगर हमारी अभी कोविशील्ड या कोवैक्सीन अभी सेफ नहीं है फॉर दी प्रेगनेंसी। We have Mrs. Pooja Gupta asking, I got my first dose of vaccine done on 7th May, but I still continue to have body aches and fever, which are between 99 to 100. Do I have to take any medicines? 7th May? Yeah. 2 days back. तो वो तो बिल्कुल मैंने बोला ना कि अगर मान लो वैक्सीन ली है आपने तो विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स फीवर आ सकता है। और अगर सेलिब्रेट करो, अगर फीवर आया तो सेलिब्रेट करो, दैट मींस द वैक्सीन इज हैविंग सम इफेक्ट ऑन यू, दैट मींस द एंटीजन व्हिच हैज बीन गिवन टू यू इट इज कॉजिंग सम एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो उसके लिए अगर फीवर आता है, अगर 100 से ऊपर आता है, तो आप पैरासिटामोल जैसे मैंने मेंशन किया, क्रोसिन या डोलो 650 या पैरासिटामोल ले लें और उससे यूजुअली नॉर्मली सबसाइड हो जाता है। और अगर फिर भी अगर फीवर चलता रहता है तो फिर चैलेंज आ सकता है और उसके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं आरटीपीसीआर पॉजिटिव तो नहीं है। Sir, I also wanted to ask for the ladies who are breastfeeding, is it still safe to get vaccinated? Again, it is a controversial area. I am not the expert for saying so. Why? Because ultimately मैंने बताया कि जैसे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अभी ये प्रूव या डिसप्रूव नहीं हुआ है कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। तो इसके लिए पेशेंट्स को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी तरीके से लिटरेचर सर्च करके और एक्सपर्ट से पूछें, रादर देन आई गिव द आंसर कि नो इट इज सेफ और इट इज अनसेफ। Sir, we have Mrs. Ekta Anand asking that her aunt has a problem of high BP and sugar. So the first time she got vaccinated, it was in a hospital. But now since schools and dispensaries have been open to go and get vaccinated, is it still safe to go there, seeing that there will be no monitoring there for the vitals? Good question, but she should have asked Modi Saab and Kejriwal Saab. Not me. What I mean to say, yes, you are right कि हॉस्पिटल्स में ये वैक्सीन लगनी चाहिए थी, मगर मुझे लगता है, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट अबाउट इट, कि जब ये देखा गया कि 13 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है, तो और ये इतनी सेफ प्रोड्यूस हो रही है, कोई एलर्जिक रिएक्शंस या एनाफाइलैक्सिस वगैरह नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ये स्टेप लिया कि स्कूलों में शुरू कर दी जाए। पर अब रादर क्वेश्चनिंग कि हम मैं हॉस्पिटल में लूंगी, जब हॉस्पिटल में शुरू होएगी और स्कूलों में नहीं लूंगी, वो गलत है। गो अहेड इन दिस, पहली वैक्सीन के बाद अगर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, पहली वैक्सीन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई, गो अहेड, डू गेट इट डन इन द स्कूल, सो दैट आपने अंदर जो अपनी इम्यूनिटी थी वो तो बना ली ना। अब उस समय का इंतजार मत करें प्लीज। मैं दोबारा वैक्सीन के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई फील फ्रॉम विद इन कि मोटिवेशन लैकिंग है थोड़ी, और मोटिवेशन चाहिए। अगर ये मोटिवेशन होगी, अगर हमारे लोगों को हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी है, उसकी वजह से अगर अभी तो एक ही तो बाण है, रामबाण तो एक ही है, बाकी तो एसएमएस तो है ही सही, पर इस समय अगर आपको इन्फेक्शन से कोई बचा सकता है या माइल्ड फॉर्म में टरका सकता है तो वैक्सीन है, तो इसलिए वैक्सीन लगवा लें। सर, आई हैव वन क्वेश्चन। श्योर विकास। What is the secret of your energy? I mean, it's now over hour and a half and you still are full of energy. So we want to know the secret of that energy, sir. I would put it this way कि मेरे साथ थोड़ा सा चैलेंज ये है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, सिनाइल चेंजेस आ गए, मैं 4 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाता हूँ, और 4 बजे से उठने के बाद 5 बजे से लेकर 6 बजे तक वेट लिफ्टिंग करता हूँ, पूरी एक्सरसाइज करता हूँ, और इस समय बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, और उसके बाद मैं 7 बजे ऑनवर्ड सारा दिन हॉस्पिटल में, अभी तो ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, पर इस जो ऑपरेशंस थे या पेशेंट्स को देखता हूँ, तो आई ऑनेस्टली फील, इफ यू आस्क मी वन वर्ड, इट इज पॉजिटिविटी। It is the positive attitude in life. If you are positive, not RT-PCR positive, but positive. If you are positive, if you have people blame me that you are having the positivity toxicity, कि आप इतने ज्यादा पॉजिटिव हो कि टॉक्सिक हो रहे हो, तो मुझे लगता है कि yes, toxicity is important. If you are positive, then this too shall pass. ये जो क्राइसिस चल रहा है वो भी पास हो जाएगा, अगर आपने अपनी एनर्जीज को, अपने टाइम को मैनेज किया, अपने एनर्जीज को पॉजिटिव रखा, दैट इज द सीक्रेट। एंड अनदर सीक्रेट इज, सर जाए पर सैर ना जाए,
हरकत में बरकत है, जान है तो जहान है। प्लस जो इस समय मेरी ड्राइविंग फोर्स है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट विकास एंड सुप्रिया, इस समय मेरी जो ड्राइविंग फोर्स है वो सिर्फ ये है, इंसानियत मरनी नहीं चाहिए। मैं इंसानियत को मरने नहीं दूंगा। कहने का सिर्फ मतलब है कि इस समय ये चैलेंज है, हम सब देख रहे हैं, लोग इतना नाजायज फायदा उठा रहे हैं इस आपदा का। इंजेक्शन इतने महंगे बेच रहे हैं, सिलेंडर्स इतने महंगे बेच रहे हैं, इतना हॉस्पिटलाइजेशन में इतने, आप इमेजिन नहीं कर सकते सुप्रिया। लोगों को मैंने टैप किया कि अगर फोन करते हैं तो लोग कहते हैं जी आपको 1 लाख रुपए लूंगा, आपको ये बेड इस हॉस्पिटल में दिलवा दूंगा, 50,000 में इसमें दिलवा दूंगा। मेरा मतलब इतना दुख होता है मुझे कि इस आपदा को भी वो पैसे जैसे कि साथ लेके जाना है उन्होंने, उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, लेट अस रिमेन पॉजिटिव, लेट अस रिमेन ह्यूमेन, लेट अस रिमेन ह्यूमेन, लेट अस, मैं बार बार ये कहता हूं, आई विल नॉट लेट द ह्यूमैनिटी डाई। Yes, some humans are dying, but not let the humanity die. इंसानियत मरनी नहीं चाहिए। अगर ये ड्राइविंग फोर्स होगी ना हम सब में, तो ऑब्वियसली पेशेंट के लिए भी अच्छा करेंगे, अपने रिलेटिव्स के लिए भी अच्छा करेंगे, अपने सभी स्टाफ के लिए भी अच्छा करेंगे, एंड दैट गिव्स मी एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। Thank you, sir. Thank you. I'm just looking at becoming emotional. so Sir. just looking at the numbers, sir. We have you have answered over 30 questions, and I can see around close to 16 questions are still there. And I'm just looking at your watch, and I can go ahead if you allow. no, I'm fine, sir. I'm just okay. We'll continue. एनर्जी, अब वो मैं कहता हूँ मेरी व्हाट्सएप पे भी टैग लाइन है, आई विल सरप्राइज यू विद माय पॉजिटिव एनर्जी लेवल। Over to you, Supriya. Sir, we have Mr. Anil Lakhani asking that a patient allergic to sulfur drugs can be vaccinated or not, and should he be taking any precautions? Wonderful question. Many people are allergic to sulfurs. बट इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेनिसिलिन इंजेक्शन से भी एलर्जिक होते हैं। पर इसमें बेटर आंसर ये रहेगा कि डॉक्टर को बता दें कि मेरे को एलर्जी है, और उस वो प्रिकॉशन ले लेंगे। प्रिकॉशन जैसे मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई किया, मेरे गुड़गांव से फ्रेंड आए, उनको हमारे एनालिसिस्ट ने, बिकॉज ही हैड एलर्जीज टू सो मेनी ड्रग्स, so many things, that is why we did not take the chance, उनको हमने स्टेरॉइड्स दे के फिर उसके बाद वैक्सीनेशन किया, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन पीरियड ज्यादा रखा, so that ultimately he is safe. तो कहने का मतलब there is safety in more safety. If you are allergic, go ahead and tell your doctor, get yourself vaccinated, observe for more time, and you will be absolutely safe. और दूसरी बात, मैं इसको ना इस तरीके से प्रेजेंट करता हूं, अगर मान लो आपको एलर्जी है, आपको कल को कोरोना हो गया, कल को इन्फेक्शन माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर हो गया, उस समय अगर वो मेडिसिन देनी पड़ गई या कोई एंटीजन की वजह से एलर्जी हो गई, तो कितना चैलेंजिंग हो जाएगा। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए तो ये दिया जा रहा है। We have Dr. Chandresh asking, after vaccination, the level of antibodies, do they have any role, or T cell activation is important? I know Dr. Chandresh must be a doctor, and इसमें मेरा जो सब्जेक्ट था, आज का जो सब्जेक्ट था, वो यही था कि मैं कॉमन मैन तक ये पहुंच सकूं। But definitely there is a role of T cell immunity. So one has to go into details and one should know about it. And physicians or the immunologists are the right persons to answer this question, not me. Sir, we have similar questions, I think, which are more or less answered. So I would once again thank you for such a informative and motivational talk, as always. And I would like to request Mr. Vikas Anand, CEO of SafeTree, to extend his vote of thanks to you. Thank you. Over to you, Vikas. Yeah, thank you, Supriya, and thank you, Vikas, for doing an excellent job. I would again and again urge that this is the right way to spread information. है ना, इस समय जो प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से, जो टीवी चैनल्स की वजह से इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है, उसमें से अगर हम थोड़ा सा उसको कंट्रीब्यूट करके पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, आई थिंक वी हैव डन ए जॉब। मैंने विकास एक स्टोरी, लास्ट वाली स्टोरी सुनाई देता हूँ कि एक समुद्र के किनारे पे एक इंसान खड़ा था, वो उछाल उछाल के ना एक मछली को पकड़ता था और वो वापस समुद्र में फेंक देता था। तो किसी ने पूछा था कि क्या कर रहे हो?
So he said that I am making a difference. वो कहते हैं कि how can you make a difference? So many fish are coming out, so many fish are dying, और वो tide waves आती हैं और वापस चली जाती हैं, तो how can you make a difference? And his answer was, I am making a difference in the life of that fish which I am throwing back. So let us be very honest about it. If you are doing with spreading happiness, if you are spreading positivity in this negative environment, it is all about finding the calm in the chaos. It is all about finding the calm in the chaos. So इस chaos में अगर हम थोड़ी सी positivity spread करें, थोड़ा सा honesty, थोड़ी सी integrity, थोड़ी सी energy spread कर सकें, I think we should do our job well. इंसानियत को मरने नहीं देंगे. Because over to you. Thank you, sir. Thanks a lot. I mean, I'm getting so many compliments about yourself, and I'll just read one of those. This has come from one of the CEOs of a leading airline company, and he says, I'll just read what he said. Dr. Bhatia is so good. I have become a fan and would like to meet him someday. Please play my compliments to this big man. If I can be of any assistance to him someday, do let me know. He's so positive energy. I mean, this gets reflected, sir. No, Thanks. I would thank him, and please tell him that it is very, very easy to assess me or access me. I am a human being, full stop. मैं ना पिछले जब मेरा स्कूल वालों ने किया था आंसर मॉडल स्कूल में, तब भी मैंने ये कहा था कि मैंने शायद छोटी सी गलती करी कि 9th क्लास में मुझसे किसी ने पूछा था कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो, और मैंने उस समय किसी को कह दिया था सर्जन बनना चाहता हूँ, और मैं हैरान होता हूँ कि मैं इतने सालों तक सिर्फ सर्जन बनने की फिराक में रहा और सर्जन बन के दिखाया या बना। पर मुझे उसी समय अगर किसी ने इंसाइट दे दी होती कि एक इंसान अच्छा बनना है, बस, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक इंसान अच्छा बन के रहे हम सब और हमारे बच्चे, और अगर उनमें ये वैल्यूज आ गई कि इंसान अच्छा बनना है, बाकी प्रोफेशंस तो सब चलते रहेंगे, इंसान इस समय कम है। तो इसके लिए मैं आप सीईओ एयरलाइंस के रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी तरीके से आप भी अपने पूरी कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं, डू इट। अभी कैन यू इमेजिन, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज स्ट्रैंडेड इन यूएस. she's a doctor, wife of a doctor, and she's a doctor. She has got 800 oxygen concentrators with her. She wants to transport it through India, but she is not finding the airlines to connect it. So unse connect kara do, so that ultimately we are able to help the mankind. Full stop. Thank you, sir. Thank you very much. I'll definitely do the connection if missing links, if that can help. Definitely, sir. It was extremely useful knowledge session. I am sure everyone would have found extremely useful. Sir, for the participants, मैंने sir को एक बार request की थी, and immediately he said, yes, we need to do that. I mean, thank you very much, sir. Your positive examples definitely make our day, sir. Thank you very much. Questions तो कभी खत्म होंगे ही नहीं, sir. But your energy levels definitely excites me a lot, sir. And towards the end, I'll say, I hope you found it extremely useful. Another also, in addition to the health talks, very important is we have to be smart enough. आज की डेट में we also need to ensure we have a financial protection. Financial protection is possible through various products, and one of those products is insurance. By paying small amount, you can take care of the huge liability which comes at the time of hospitalization. So I always tell, this is a very smart move. Let's ensure we are well protected. And at Safetree, we have gone additional further. We have tools which help you identify how much minimum sum insured आपको लेना चाहिए. So there is a tool which in less than 30 seconds tell you कि minimum sum insured आज की डेट में कितना लेना चाहिए. And I can tell you, जब हमने calculate किया था, Dr. Bhatia was one of the instrumental in helping me come up with that tool. So again, thank you, sir. Thank you very much. Yes, sir. Thank you very much. And this is precisely I was mentioning. This is called a preparedness. कि अगर अपने आप को आप बचाना चाहते हो और अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए, so that ultimately from within you are strong. So once we are strong, definitely we will be able to defeat the enemy. And in the same breath, I must thank Supriya for doing an excellent job,
taking so many questions. Thank you, Vikas, for doing a good job. And I wish SafeTree remain safe for one and all for years and years to come. Thank you very Thank you, much. sir. God bless you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.